This conference will now be recorded. Hello everyone, am I audible? Shuhani, Prateek, Kuldeep, Tarun, Sweta, and Yes, sir. Yes, Dipanshu. sir. Okay. So yesterday I have discussed about Python. What is Python? Okay. Introduction of Python and what are the types of application we are developed with the help of Python, like CUI based application, GUI based application. Oh, just mute your mic. Hello. CUI based application and GUI based application, and then compatibility about desktop applications, web application, okay, mobile application, AI, ML. So these are the things we develop with the help of Python. Now coming, we discussed Django. What is Django? So Django is not a programming; it is a framework to develop web application that support MVT architecture. So what is MVT? Here I have discussed MVT model. Okay, user request to the Django application, then goes to the URL. So when a user type URL, then first request goes to the view. Okay, and view then send view go to the model to take some data. Model return the data to view and view display the result in template. So here view is a BLL business logic layer, model is a DL data access layer, and template is a PLL presentation logic layer. So this is overall MVT architecture. Then after because web application, so every web application follows client server architecture. Okay, so what is client, what is server, and how to make client and how to make server. So here is a diagram I have discussed yesterday, that at client side we know HTML, CSS, JS. These are the basic languages, and if you go for advanced, then jQuery, Bootstrap, React, and Angular. Client. So how to create a client? You must know these languages. And if you talk about server, so at server side, what are the requirements? You should have Python. Okay, you know the basic idea about Python, and then Django and web server. So once when you install Django, so Django provide automatically development server for you, in which you run Django application. And how many web servers? So in web server we have IIS, in Windows operating system IIS, Internet Information Server. If you have Linux operating system, then Tomcat, Apache. And here we have one another server, that is Nginx, that work as a load balancer. And if you want to deploy your site, then hosting and deployment we have different server, like Python Anywhere, DigitalOcean, Heroku, and Linode. Okay, so these are the thing I have discussed. क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को फिर से दिखा दिया है, राइट, ताकि ये सब रिकॉर्डिंग में आ जाए। ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ जाए, बच्चों को जो मिसिंग है कल के उनको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं ये जो नोट्स थे मैंने जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ये रिकॉर्डिंग में आ रही है, क्योंकि कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी ना, इसलिए मैंने रखा है इसको। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया ना? ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू वर्क विथ पाइथन, कैसे आप इसमें काम करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, विंडो आर ओपन रन कमांड एंड देन टाइप cmd, विंडो आर एंड देन cmd। मेरे साथ करिएगा सब लोग, आप लाए लैपटॉप, ओपन कर लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, चेक करना है पाइथन वर्जन। ओके, सो हाउ टू चेक पाइथन वर्जन। सबसे पहले आपको चेक करना है पाइथन वर्जन। कहाँ पे चेक करना है? CMD में, राइट। So how to check Python version? We have command python hyphen hyphen version. So this is the command that is used to check Python version. Okay. So in CMD, just type python hyphen hyphen
version. So are you getting Python version or not? So okay, if any of you not getting or you are getting any error like Python is not recognized as an internal or external command, then please let me know. Shuhani, Prateek, Kuldeep, Tarun, Sweta Jha, Dipanshu and Avdesh. Please type in your command prompt Python hyphen hyphen version and check did you get Python version or not. If you are not able to get Python version, then please let me know. Okay, and I will tell you how to make this. आपके में आ रहा होगा Python is not recognized as an internal or external command. So if you are getting this type of error at the time of checking Python version, and if you are getting like Python is not recognized, Python is not recognized as an internal or external command, right? So are you getting this type of error? Okay. Yes, sir, same. Python was not found. Sir, You my are getting error comes Python was not found. I get Python was not found, sir. okay, okay. If you get Python was not found, then without argument to install from the Microsoft Store or disable the software from settings. Manage app execution aliases, right? Clear? Yes, sir. So how to solve this error? Okay, okay. So how to solve this Sir, error? your Just voice go is to echo. your सर आपकी आवाज इको हो रही है. आप बताइए हेलो हेलो हाँ सर आप क्लियर है. Yes, sir. Now I got ओके सो करना क्या है आपको इफ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ एरर सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके हु आर गेटिंग पाइथन वर्जन सो प्लीज comment in the chat box like Tarun getting Python 3.11. So first of all, how to solve this error? So just search bar type manage execution aliases. Manage execution alias. Just or you type alias. Otherwise, let me check. Alias. Yeah. Manage app execution aliases. If you type ALIAS, then यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है ना मैनेज ऐप एग्जीक्यूशन एलियास क्लियर yes, so sir. just click on this manage app execution alias okay just click on this and here you have app installer python.exe and app installer python.exe right Yes, sir. Yes, yes, sir. so I think आप उसको देखोगे तो वो इनेबल होगा ना उन दोनों को ऑफ कर दो एक बार ऑफ करिए जरा उन दोनों को Okay. दो है जितने भी हैं उनको ऑफ करिए कर Yes, दिया sir. Yes. yes now check okay now check अब चेक करिए अब आप चेक करिए अब आ रहा होगा आई थिंक पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है कि सही हो गया मतलब अगर पाइथन का आपने वर्चुअल सेटअप किया होगा इन्वायरमेंट सेटअप तब एरर नहीं आएगी जैसे आपके में सेटअप नहीं है तो आपके में आ रहा है पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनेशनल कमांड आपका आया और कौन था जिसका प्रॉब्लम हो रहा था सर सेम सर प्रॉब्लम आ रहा है प्रतीक वर्ड्स पाइथन वर्जन इज नहीं नॉट अब रिकॉग्नाइज्ड. Now I हाँ can हाँ get. यही हाँ Now यस I यस can get. दीपांशु Yes, व्हाट आर यू सेइंग नाउ आर यू गेटिंग now I can पाइथन get वर्जन it. और नॉट Python is no, I am not getting it. okay you are getting python is not recognized as an international command right Yes, sir. right okay now how to solve this Yes, problem sir.
how to solve this problem? Just in your search, okay, in your search type Python, type Python, टाइप करो पाइथन, करा टाइप पाइथन। तो यहाँ पे देखो आपको पाइथन दिख रहा होगा, आइडियली आ रहा है आपके में, ये आ रहा है आइडियली 3.6 3.10, ये आ रहा है सबके में। देन राइट क्लिक एंड ओपन फाइल लोकेशन, राइट क्लिक ऑन दिस, देन गो टू ओपन फाइल लोकेशन। कैन आई क्लिक, करूँ मैं क्लिक? ओके okay, now again you are getting ideally, so again right click on this, दोबारा right click on this and again open file location. So here is your python installed, आपका python देखो ये बता रहा है C user महादेव ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम python 310, यहाँ पर आपका python जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल होता है। मिल गया ना ये? देखो तो ध्यान से क्या करना है। अब आप क्या करो, यहाँ पर देखिए आपका पाइथन है, ओके, ये पाइथन है, ये एप्लीकेशन है पाइथन की। एंड हेयर वी हैव वन फोल्डर अगेन स्क्रिप्ट्स, एक फोल्डर और दिख रहा होगा आपको स्क्रिप्ट्स। सो जस्ट गो टू स्क्रिप्ट्स फोल्डर और यहाँ पर देखो आपका पिप है, दिख रहा है पिप? देखो इधर क्या करना है, समझ गए ना? स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर चलेंगे सब लोग, ये आप इसके अंदर चले गए स्क्रिप्ट्स के अंदर, देखो आपको सबको पिप दिख रहा है यहाँ पे। आपको क्या करना है, ऊपर सेलेक्ट करो, इसको कर लो कॉपी, इसको सेलेक्ट करके क्या कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इधर क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आप टाइप हेयर टू सर्च में फिर से ही और यहाँ लिखिए env, इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, यस यस कमिंग जैंगो, एडिट द, लिखा env, यहाँ पे जाइए एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। इतना आया सबका? बता दीजिएगा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इसलिए। देन गो टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, देन गो टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड यहाँ पर देखो ऊपर दिख रहा होगा पाथ, दिख रहा है सबको पाथ? पाथ पे क्लिक करो और यहाँ पे जाओ एडिट में। सर मेरे में सब शो ही नहीं हो रहा है सर। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मैं अभी आपका देख लूंगा, आपका शो नहीं हो रहा तो Okay, so क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो now I सकता है got कि it. शो ही नहीं हो रहा है? यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल में ओके जाओ ना, फिर पाथ में जाओ, ऐसे कैसे शो नहीं हो रहा है? सर, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और पीपीएस शो ही नहीं कर रहा है। नहीं इतना कर लिया ना, एक मिनट, पाथ में जाके यहाँ पे एडिट करना, एडिट, और यहाँ पर क्या करना, उसको कॉपी कर लेना। क्या करोगे? उसको कॉपी कर लेना। पहले कॉपी करने के पहले न्यू में जाना, क्लिक ऑन न्यू, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना, ये न्यू, और यहाँ पर क्या कर देना, पेस्ट कर देना। और पेस्ट करने के बाद जब पेस्ट करोगे ना तो स्क्रिप्ट्स को हटा देना बस, ठीक, और फिर से न्यू करना और फिर पेस्ट करना, इस बार स्क्रिप्ट्स को रहने देना। ओके ओके ओके, बस अब आप क्या करो, अपने सीएमडी को बंद करो एक बार और फिर से चेक करो पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, अब देखो आ जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर पेस्ट कर देना, देख रहे हो इधर, पेस्ट करने के बाद ये स्क्रिप्ट्स को हटा देना एक बार, फिर से न्यू पे क्लिक करना और ये एक बार स्क्रिप्ट्स रहेगा और फिर ओके कर देना, ठीक है? और फिर ओके ओके करते चले जाना, समझ गए? आ गया ना? बस आप लोग का आया? हेलो, now open, close the cmd and again python hyphen hyphen version, check python version, cmd बंद करिएगा फिर से चेक करिएगा। हो गया सबका? बताइए जिसका नहीं हुआ स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं। सर मेरा नहीं हुआ, प्रतीक बोल रहा हूँ, नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं आपका स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार सब फिर से देख लेंगे। प्रतीक, ओके okay, I make you presenter, just share your screen, now you are a presenter, just share your screen। जस्ट सब शेयर कर दूँ। नहीं नहीं, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अभी आपकी स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। हाँ अब दिख रही है। तो अब आप देखो क्या करो, ये जो आ रहा है ना, एक मिनट, ये कहाँ पर हो आप अभी? एक मिनट सर रुक आपने जाओ, बोला सर पाइथन। ओके रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे टाइप करो आईडीएलई पहले तो,
एक काम करो ना, टाइप करो, एक बार बैक करो, बैक करो, बैक करो। नहीं ना, टाइप मत करो, इधर आना। ये जो पाइथन ये दिखा रहे हो आप, हाँ इसको बैक करो यहाँ से, ऊपर से, यहाँ से बैक करना, यहाँ से। अरे यार मैं इसको एक्सेस भी नहीं कर पा रहा हूँ ना। क्या कर रहे हो आप, एक मिनट रुको, इसको बैक करो ना। कहाँ गया वो पाइथन जहाँ पे दिखा रहे थे आप? हाँ हाँ सर। इसको बैक करो यहाँ से, ये पीछे बैक का ऑप्शन आ रहा है, इसको बैक करो। अरे ये बैक का ऑप्शन आ रहा सर है ना इधर ऑप्शन, से। नहीं नहीं, अरे यार वो जो पाइथन 319 लिखा हुआ है, उसको यहाँ से बैक करो। हाँ हाँ सर कर रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करना जरा, मैं कीबोर्ड माउस की एक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ आपके, एक मिनट। सर बैक यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो पा रहा है सर। एक मिनट, एक मिनट, मुझे 2 मिनट देना, मुझे 2 मिनट देना, होल्ड करो। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तब तक आप करो, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रतीक ना, यहाँ से बैक करो, ये जो बैक वाला बटन आ रहा है ना पीछे, जहाँ से बैक करते हैं हम लोग, ये सर कॉर्नर में, वो हाँ इसको बैक बैक नहीं करो। कम नहीं हो पा रहा सर, वही कह रहा हूँ मैं। बैक कर रहा हूँ तो नहीं हो, अच्छा, क्लिक कर तो रहा हूँ ये यहाँ जो, पे। ओके ओके कोई बात नहीं, ये अपवर्ड एरो है, इससे बैक करो। ये जो अपवर्ड एरो आ रहा है, इससे बैक करो, हाँ। बस, हाँ ठीक है, एक मिनट। आप एक काम करो, इसको बंद कर दो, इसको बंद करो, ओके सर। बंद करो। हाँ अब सर्च में जाओ, लिखो आइडियली, सर्च में जाओ, लिखो आइडियली, यस सर। राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन। बताइए सर, मैं इनका कीबोर्ड माउस कैसे एक्सेस करूं? प्रतीक है, इनको मुझे एक्सेस करना है। पहले क्या था यूआई में कि जब हम यहाँ से, जैसे इनको मैंने प्रेजेंटर बना दिया, ठीक है, अभी प्रेजेंटर बने हुए हैं, तो प्रेजेंटर का ऑप्शन यहाँ से चला गया क्योंकि प्रेजेंटर है, ठीक। अब क्या है कि मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आता था, रिक्वेस्ट कीबोर्ड और माउस। तो मैं जैसे ही रिक्वेस्ट कीबोर्ड और माउस पे क्लिक करता था, तो वहां से बच्चा ओके करता था, मैं उसके कीबोर्ड माउस को एक्सेस कर लेता था। जैसे अभी मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं उसको बता रहा हूँ, अब वो कर नहीं पा रहा है, वो धीरे कर रहा है। अभी मैं अगर एक्सेस कर लेता तो बच्चे सारे देख लेते और मेरा काम आसान हो जाता। ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब मैं उनके वहां पर उसके कीबोर्ड माउस से एक्सेस कर लेता, तो बच्चे के कीबोर्ड माउस से, अपने कीबोर्ड माउस से। बल्कि जो अनिल सर का यूआई है, उसमें ये ऑप्शन है रिक्वेस्ट कीबोर्ड माउस का, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक बार कुरान सर से डिस्कस करिएगा ये। ठीक है, अच्छा हमने वो दिखा दिया। हाँ हाँ सर, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अब वो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको करके दिखाता, वो अपना बैठा रहता है और वो देखता आराम से। चले जाओ, बहुत बेनिफिट करेगा आपको।
हाँ जी बताइए। एक मिनट, आपने टाइप किया आइडियली प्रतीक? यस सर, किया है। यस सर। हाँ आइडियली करो, आइडियली टाइप करो और राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन। सर ये आया सर। हाँ आइडियली लिखो ना, आइडियली लिखो यहाँ पे, IDLE। कर रहा हूँ राइट, सर, फिर से फिर कर इसी, दिया। हाँ हो गया हो गया हो गया, एक मिनट वो वही दिखाओ, वो आ तो गया था अभी, आपने दिखाया तो था, वही वहीं पे जाना है। अरे अभी आपने एक स्क्रीन दिखाई थी मुझे। सर लेट चल रहा है ना, इसलिए आगे पीछे हो रहा है सर। राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करो। अरे क्या कर रहे हो यार, इस पे राइट क्लिक करो आइडियली पे, फिर ओपन कर दिया। कर, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। और बच्चों का हो गया, बाकियों का ना? राइट क्लिक करो सर ओपन फाइल मेरा लोकेशन। पाइथन, ओनली पाइथन लिखने से वर्जन आ रहा है सर। हाँ बस ठीक है, फिर राइट क्लिक करो, देख लो एक बार, देख लो ये कैसे कर रहा है। राइट क्लिक करो, बता रहा हूँ मैं इनको, फिर आइडियली पे, आइडियली पाइथन पे सबसे टॉप पे। हाँ इस पे राइट यस क्लिक करो, सर। ओपन फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन, हाँ ये। ओके सर, हाँ आ गया सर। फिर स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाओ, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करो उसमें, यस सर। ये इसको सेलेक्ट कर लो, यस सर। ऊपर से ऊपर, ऊपर सेलेक्ट करो उसको, कॉपी कर लो। अरे ऊपर है यार, ऊपर तीन। ये तो लिखा हुआ है ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम, इसको सेलेक्ट करो, बाहर क्लिक करो कहीं भी। अरे यार यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक कर दो, उसके ऊपर टॉप, अरे अरे बैक करो। बड़ी दिक्कत है यार, यही तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, एक तो तुम्हारे कीबोर्ड माउस को, आप तुम गलत सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ ऊपर क्लिक करो बेटा, यहाँ ऊपर क्लिक करो, ये कहाँ पर स्क्रिप्ट्स के बाद सर? क्लिक करो। सुनो मेरी बात सुनो, पहले स्क्रिप्ट्स के बाद क्लिक करो, जो ऊपर यहाँ पाइथन 13 है पाइथन ना, पाइथन। उसके, सुन लो, स्क्रिप्ट्स के बाद करो क्लिक, स्क्रिप्ट जो लिखा है उसके बाद कहीं भी क्लिक कर दो, उसके आगे कहीं भी क्लिक कर दो, वो सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया सेलेक्ट, कॉपी करो, हो गया, हो गया सर। कर लिया कॉपी सर। करो, कर लिए। अब ENV लिखो, हो गया सर, कर लिया। सर्च बार में क्या लिखूँ लिखो सर? ENV। अरे यार ENV, हाँ सर। इसमें जाओ, एडिट द, नीचे 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 वाले में एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाओ। इतनी देर में तो प्रोजेक्ट बन जाता है यार। हाँ अब यहाँ से जाओ इन्वायरमेंट वेरिएबल में, नीचे आ रहा है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसमें जाओ। हाँ यस सर। ठीक, अब यहाँ से पाथ में जाओ, वो पाथ लिखा हुआ है PATH, वन ड्राइव के नीचे, वन हाँ ड्राइव के सर। नीचे लिखा हुआ है पाथ, हाँ सर। हाँ। क्लिक करो उस पे, पाथ पे। हाँ सर, खुल गया, हाँ ओपन हो गया। अरे मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन फ्रीज हो गई तुम्हारी, मुझे नहीं दिख रहा है आपने क्या ओपन किया अभी। नेट स्लो है क्या तुम्हारा? नहीं सर, नेट चल रहा है। आ स्क्रीन रही है सर, फ्रीज अभी है स्क्रीन आ तुम्हारी। रही है। हाँ ठीक है, अब आ गई, हाँ। अब न्यू पे क्लिक करो, न्यू। एक बार तुमने क्या हो किया, गया। पाथ पे ही सेलेक्ट किया था ना, पाथ पे ही। Yes, sir. हाँ Yes. सर, पास। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, न्यू पे क्लिक करो, Okay, sir. न्यू हाँ पे सर, क्लिक न्यू पे करो, न्यू क्लिक पे। कर दिया कर सर, दिया, न्यू पे कॉपी क्लिक कर कर। दो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो यहाँ पे, ओके जो सर, वहां से पेस्ट कर कॉपी किए दिया। थे, पेस्ट कर दिए। स्क्रिप्ट कर दिया हटा दो सर। लास्ट से, हाँ ठीक है, लास्ट से स्क्रिप्ट हटा दो, वो जो लास्ट में ओके स्क्रिप्ट सर। लिखा हुआ उसको हटा दो, हाँ सर, हटा रहा हूँ सर। सिर्फ स्क्रिप्ट हटाना, स्क्रिप्ट, बस बस ओके बस सर, बस हाँ बस सर। बस, फिर से न्यू पे क्लिक करो, अब पेस्ट कर दो, अब ओके कर दो, नीचे नीचे ओके आ रहा होगा, कहाँ किया यार, पेस्ट तो करो पहले। कर हाँ दिया सर, ठीक है, कर अब दिया, ओके हो कर, गया। ठीक ठीक, अब ओके करो, अरे यार ओके करो अब नीचे, कर दिया। अब ओके 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 करते चले जाओ, हाँ सर। सब ओके ओके कर दिया। Yes, हाँ अब सर। CMD ओपन करो, अब CMD ओपन करो, हाँ अब लिखो पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। यार वही तो बता रहा हूँ तब से यहाँ बैठ के, हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर करो। अब तुम्हारे भी तो एरर आ यही रही है, है ना, अब यहाँ पाइथन पर, हाँ कोई बात, रुक जाओ, एलियास में पाइथन। जाओ, लिखो वहाँ ALIAS, सर्च बार में लिखो ALIAS, AL, हाँ हाँ सर, ALIS, आया नहीं, ऊपर वाला में जाओ सर। नहीं 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 नहीं, यहाँ लिखो मैनेज, हाँ ये आ गया, इसी पे मैनेज ऐप एग्जीक्यूशन एलियास, इस पे क्लिक करो, इसी पे क्लिक करो, हाँ
नीचे आओ नीचे, एक से नीचे आओ, 1 मिनट इसमें नीचे आओ। हाँ सर आ गया नीचे। तो ये जो ऐप इंस्टॉलर पाइथन डॉट एक्सी लिखा हुआ है, हाँ सर। इन दोनों को ऑन है, इन दोनों को ऑफ कर दो, इसको भी ऑफ कर दो। अब इसको बंद करो, आपको नहीं करते। इसको बंद, हाँ जी बंद कर दो अब। और फिर से ओके सीएमडी सर ओपन बंद कर करो और दो। फिर से चेक करो, फिर से सीएमडी बंद करो और ओपन ओके करो। सर कर रहा हूँ। आ गया सर, थैंक यू सर। कहाँ आ गया है, मुझे तो दिखाई नहीं, आ गया ना अब यहाँ पर। ठीक है, वेलकम। और ध्यान दिया करो यार, जैसे बताता हूँ वैसे किया करो, ठीक है। थोड़ा आप लोग क्या कर रहे हो ओके सर दोनों, थैंक यू। इधर देखो। वो हो गया पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन से पाइथन का वर्जन आ गया, क्यों नहीं आया यस यार, सर आ यहाँ गया पे सर। देखते। उनका आ गया, आपका भी आ जाता, आप देखते हैं यहाँ पर। तो हाउ टू चेक पाइथन वर्जन, तो हम लोग लिखते हैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अब आप लिखोगे यहाँ पिप हाइफन हाइफन वर्जन, तो जैसे ही आप पिप हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे, तो ये हमारा तरीका होता है पिप का वर्जन चेक करने का। सो हाउ टू चेक पाइथन वर्जन हमने देख लिया, और पिप वर्जन चेक करोगे तो मेरे में पिप है 22.0.4। तो आप देखिए आपके में आ रहा है क्या, हाउ टू चेक पिप वर्जन, अब आपके में आ जाएगा। सेट कर दिया ना पूरा, पिप हाइफन हाइफन सर वर्जन। अब आपको इफ में पिप आ रहा वर्जन सर में मिल जाएगा। 22.0 आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, आ गया ना। यस सर आ गया, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये समझ में आ गया ना। ले आओ यार, तुम्हारा इतना टाइम से लगाऊंगा मैं, 2 मिनट में कर दूंगा। देख देख रहे होते तो तुम कर चुके होते। लेकिन जो यार एक का नॉट फाउंड आ रहा है अभी, आपका भी नॉट फाउंड आ रहा है, देखते नहीं हो यहाँ जो बताया जाता है, तो कुछ और ही कर रहे होते हैं। ये अभी तो सॉल्व किया मैंने। यहाँ ध्यान दिया करो बोर्ड पे। इसमें तो मैंने अनाकोंडा वो जुपिटर करा हुआ है पाइथन। तुमने क्या किया हुआ है, यही तो सब गड़बड़ हो रखा है, फिर एप्लीकेशन चल नहीं पाएगी फिर ऐसे। कहना कॉन्टेक्ट क्यों कर लेते हो, बिना उसका काम नहीं चलेगा क्या। एंटर किया, थोड़ा लैपटॉप बड़ा अजीब सा है, थोड़ा लैपटॉप चलाना भी चैलेंजिंग है मेरे लिए। अब वाली ठीक कर रहा है, पाइथन ही नहीं इंस्टॉल है क्यों। अनाकोंडा वो जुपिटर करा हुआ है ना पाइथन जुपिटर। पाइथन इंस्टॉल करो, एनाकोंडा फेनाकोंडा का क्या काम है वो, हमें तो पाइथन का काम है, हमें एनाकोंडा से क्या मतलब है। आपका इंस्टॉल है पाइथन, आपके नहीं install। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके में? राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन। ये रिकॉर्डिंग में है, घर पे जाकर देखना कैसे कर रहे हैं। राइट क्लिक,
ये क्या है? ये वो अच्छा आ गया? हाँ, फिर मैं तुम्हारी गलती है। तुम्हारे में हम लोग की तरह नहीं आ रहे हैं। टिप हाइफन हाइफन वर्जन। हाँ तो ठीक है ना, 22.3 देर में आ रहा है थोड़ा, सिस्टम स्लो चल रहा है। सो ये हमने कर लिया पाइथन वर्जन एंड पिप वर्जन, ये सबका आ गया। सर पिप नहीं आ रहा है। आ गया यस सर, आ गया सर। जिनका नहीं आ रहा वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनका उसी से आएगा। ध्यान से किया। किसका नहीं आया? कुलदीप का? कौन कह रहा नहीं आया? जी सर, कुलदीप। दीपांशु? कुलदीप ओ देखेगा सर क्या नहीं आ रहा तुम्हारा? आगे नहीं हो स्क्रीन शेयर करो जरा अपनी, देख लेता हूँ उनका क्या प्रॉब्लम है। सर मैं मोबाइल से क्लास कर रहा हूँ सर। तो फिर देखो, तुम कल आना ऑफलाइन तो दिखाना ला करके, ठीक है? ओके सर। ऑफलाइन क्यों नहीं आते हो जब आ सकते हो तो? हो सके तो मैक्सिमम ऑफलाइन आया करो, ऑनलाइन से काम नहीं चल पाएगा इसमें। चलिए, सो हमने देख लिया हाउ टू चेक पाइथन वर्जन, हाउ टू चेक पिप वर्जन। अगला है हमारा हाउ टू चेक जेंगो वर्जन। हमें चेक करना है जेंगो का वर्जन। जेंगो का वर्जन चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं जेंगो हाइफन एडमिन और हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है? कैसे लिखेंगे? यहाँ जाइए, यहाँ लिखेंगे जेंगो हाइफन एडमिन हाइफन हाइफन वर्जन। तो जेंगो का वर्जन है हमारे पास 4.0.5। क्लियर? क्या नहीं आ रहा जेंगो? हाँ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। वो आ रहा होगा कि जेंगो हाइफन एडमिन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इतना आ गया सबका? ये चेक किया सबने? जेंगो हाइफन एडमिन हाइफन हाइफन वर्जन। अगर ये नहीं आ रहा है तो अब आपको देखना है कि हाउ टू इंस्टॉल जेंगो। हमें जेंगो इंस्टॉल करना है, तो कमांड टू इंस्टॉल। तो जेंगो को इंस्टॉल करने की कमांड क्या होती है? पिप इंस्टॉल जेंगो, ये कमांड होती है। इंस्टॉल करने की कमांड होती है पिप इंस्टॉल जेंगो। पिप इंस्टॉल जेंगो लिखिएगा और एंटर प्रेस करिएगा। इंटरनेट होना चाहिए सबके पास, तभी इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिएगा अपने लैपटॉप से।
तो मेरे में आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है जेंगो। तभी तो मेरे में वर्जन दिखा रहा था 4.0.5, राइट। तो आप इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल जेंगो, ये लिखिएगा, जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। अरे सर इंस्टॉल हो रहा है सर, एक MB का। क्या कह रहे हो? सर इंस्टॉल हो रहा है सर। हाँ करो, सब लोग करिए इंस्टॉल। Yes, another installation has started. हो गया सर, थैंक यू सर। हो गया? यस सर हो गया। हाँ, जिनका नेट नहीं है वो घर पे करिएगा, वो नहीं हो पाएगा फिर, जब तक नेट नहीं होगा ना। नेट होना चाहिए इसके लिए। फिर आप जब हो जाए तो आप क्या करिए, जेंगो हाइफन एडमिन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे जेंगो हाइफन एडमिन हाइफन हाइफन वर्जन, ये कमांड लिखेगा, इससे जेंगो का वर्जन चेक कर लीजिएगा 4.0.5। क्लियर? आ गया आपका भी? नेट की नेट है। जब इंस्टॉल हो जाए देन यू चेक जेंगो हाइफन एडमिन हाइफन हाइफन। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक। अब हमें देखना है हाउ टू वर्क विथ जेंगो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम जेंगो प्रोजेक्ट पे काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा इधर, जो भी आप कर रहे हैं करना छोड़ दीजिए, या तो फिर पहले कर लीजिए, बताइए, मैं वेट कर लूँ 2 मिनट। तो मैंने पाइथन ही नहीं इंस्टॉल किया अपने में अभी तक, आज तक। सर ये वर्जन जुपिटर जेंगो ऑनलाइन कंपाइलर है, उसी में करते हो ऑनलाइन ना। हाँ, क्या कह रहे हो? सर जेंगो वर्जन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। नहीं नहीं, पहले आप इंस्टॉल करोगे तब ये चेक करोगे ना। सर इंस्टॉल कर इंस्टॉल लिया? कर लिया सर। मैंने भी तो इंस्टॉल कोई कर एरर लिया था, फिर भी एरर आ रहा है। दिखाओ प्रतीक, तुम्हारे में जो एरर आ रहा है वही उसके में आ रहा है। कुलदीप आप तो फोन से कनेक्ट हो ना, तो प्रतीक का देखते हैं, आप देख लीजिएगा दोनों जैसा एरर है। ओके। ठीक है, मैंने आपको सर मेरे प्रेजेंटर में बना हो दिया गया, प्रतीक। इंस्टॉल हो गया सर मेरे में। नहीं नहीं, वर्जन चेक कर लिया आपने, ये आ गया आपके में? यस सर आ गया सर। किसके में नहीं आया और किसके में नहीं आया, कोई बोल रहा था नहीं आया मेरे में। तो मेरे में नहीं आया, मेरे में। हाँ जी। दीपांशु, आपको बनाओ प्रेजेंटर। बनाइए। ओके, सो दीपांशु यू आर अ प्रेजेंटर नाउ, शेयर योर स्क्रीन। So now the screen is visible, यस यस यस, विजिबल। but I can getting the जेंगो, error when I नहीं नहीं, यू आर टाइपिंग रॉन्ग कमांड ना। what command? जेंगो हाइफन एडमिन लिखो, जेंगो हाइफन एडमिन के बाद एक स्पेस होगा बस, ये गलती है बस। Okay. लिखो जेंगो हाइफन एडमिन, लिखो लिखो, देख रहा हूँ मैं, जेंगो हाइफन एडमिन। Django Python admin. Yes. अब एक स्पेस दो। हाँ, अब हाइफन हाइफन वर्जन, स्पेस आपने नहीं दिया था, देखो ऊपर, Yes. Now I got it. SION, Yes sir. हो गया. Thank you. हो तो गया। सही लिखोगे तो Okay. आंसर Thank you. आएगा। यस सर हो गया। ओके,
चलिए आगे बढ़े सर हम। पाइथन पाइथन वाले कमांड में भी स्पेस देना था क्या? सब में स्पेस देंगे। देखो मैंने यहाँ नोट पैड में सब लिख दिया इसीलिए कि आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। इधर देखो, ओके पाइथन ओके सर। एक स्पेस फिर हाइफन हाइफन वर्जन, पिप एक स्पेस हाइफन, जैंगो हाइफन एडमिन एक स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। तभी तो यहाँ सब लिख दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो ओके बाद सर, में अब आपको। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। पाइथन भी सॉल्व हो गया। सब सॉल्व हो गया ना। यस सर। ओके, सर एक बार तो पीप अब आप वाला क्या कमांड था, दिखा दीजिए। पिप हाइफन हाइफन वर्जन सब सेम ही है। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, पिप हाइफन हाइफन वर्जन, पिप का वर्जन चेक करने के लिए। यस सर, ठीक आगे है, बढ़े। ठीक है। ओके सर। हाँ, हमें समझना है कि हम लोग हाउ टू वर्क विद जैंगो प्रोजेक्ट। आप जैंगो का प्रोजेक्ट बनाओगे तो जैंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैसे आप उसमें काम करोगे एक्चुअल में, है ना। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, आपका जो पीसी होता है ना, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी है, सो इन योर पीसी यू आर फ्री टू इंस्टॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन वर्जन, है ना। आप आपका पीसी है भाई, आप चाहो जितने पाइथन के वर्जन इंस्टॉल करो। वी हैव लॉट्स ऑफ पाइथन वर्जन नाउ, है ना, 9.7.8.10.11 हर 2 महीने में 3 महीने में पाइथन के नए वर्जन तो आ ही जाते हैं। जब भी आप देखो 1-2 महीने बाद एक नए आ ही जाता है नया वर्जन उसका ना। तो होता क्या है कि इन योर कंप्यूटर यू कैन इंस्टॉल एनी पाइथन वर्जन। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। लेट सपोज इन योर कंप्यूटर 3 पाइथन वर्जन। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 3 पाइथन वर्जन है। एक मान लीजिए आपके कंप्यूटर में पाइथन 3.9 है, एक मान लीजिए आपके में पाइथन 3.10 है, एक मान लीजिए पाइथन 3.11 है। तो लेट सपोज आपके कंप्यूटर में 3 पाइथन वर्जन है, पाइथन 3.9 भी है। मतलब जब आप आईडीएली करते हो ना, यहाँ पर जब आप यहाँ पर आईडीएली करते हो, तो हेयर आई हैव 3.10, जैसे मेरे पास 3.10 है, तो आपके में मान लो 3.10 भी है, 3.9 भी आ रहा है नीचे अगर इंस्टॉल होगा, और 3.11 भी आ रहा है आपके में। लेकिन एट ए टाइम यू कैन वर्क विथ ओनली 1 पाइथन वर्जन। किसके साथ आप काम कर सकते हो एट ए टाइम, लेकिन आप एक ही पाइथन वर्जन पे काम करते हो, एक ही पाइथन वर्जन से काम करते हो, एक टाइम में एक ही पाइथन के आप साथ काम कर सकते हो। तो किससे काम करते हो, जो आपका सीएमडी से आपने कनेक्ट कर दिया है, राइट। जैसे मैं मेरा अभी मान लो बहुत सारे वर्जन होते हैं, है ना, मैंने अपने कौन से पाइथन वर्जन को कनेक्ट करके रखा हुआ है, 3.10.5। इसका मतलब है मैं एट ए टाइम एक पाइथन वर्जन पे काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 3.10.5। सो हो गया एट ए टाइम यू कैन वर्क ओनली वन पाइथन वर्जन विच इज कनेक्टेड विद योर सीएमडी, राइट। जो आपके सीएमडी से कनेक्ट है एट ए टाइम आप उसी पे काम कर सकते हो। ओके, लेट सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन जैंगो। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया प्रोजेक्ट 1। मतलब ये प्रोजेक्ट का नाम ही प्रोजेक्ट 1 है। जैसे होता है ना प्रोजेक्ट के डिफरेंट नाम, इन्वेंट्री हो गया, एसएमएस हो गया, ई कॉमर्स हो गया। मान लीजिए इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 1। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट 1। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, है ना, एवरी प्रोजेक्ट हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट। हर प्रोजेक्ट की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। लेट सपोज project, because I am going to create a project with the help of Django. So this project first requirement is you should have Python, क्योंकि Django में हम लोग Python प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, Python होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, Django होना चाहिए। तीसरा मान लीजिए इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि इसमें हम NumPy से रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे, तो इसमें NumPy भी कर दिया आपने इंस्टॉल। मतलब इस प्रोजेक्ट में आपने ये इंस्टॉल कर दिया, पिप इंस्टॉल NumPy, तो NumPy इंस्टॉल कर दिया। और आपने मान लीजिए इसमें एक इंस्टॉल कर दिया रिक्वेस्ट, ये आपने इंस्टॉल कर दिया। every project has a different requirement. In this project you required these libraries, these Python libraries। अरे जब आप किसी पे काम करते हो, कोई भी लाइब्रेरी की आपको नीड पड़ती है ना, तो उसको इंस्टॉल करते हो और ऊपर नेम स्पेस मतलब असेंबली जो भी लगाते हो और उसको यूज कर लेते हो, इंपोर्ट लगा कर अपना यूज कर लेते हो, है ना। यहाँ पर वही है कि एवरी प्रोजेक्ट हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट। लेट सपोज दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन, तो इसमें NumPy की जरूरत थी, तो इसमें हमने पाइथन इंस्टॉल किया, Django इंस्टॉल किया, NumPy इंस्टॉल किया और रिक्वेस्ट इंस्टॉल कर लिया इस प्रोजेक्ट के लिए। अब आपके कंप्यूटर में आप तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओगे,
Now I am going to create another project. That project is, let's suppose this project is project 2. मैं अब दूसरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, project 2. And this project also have different requirement. Every project has different requirement. जैसा प्रोजेक्ट होता है वैसे रिक्वायरमेंट होती है. मान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि पाइथन का, तो पाइथन और जेंगो तो कॉमन है, ये तो हमें हमें चाहिए चाहिए. मान लीजिए इस प्रोजेक्ट में इस बार इसको चाहिए स्काई पाई. ठीक है, मान लीजिए इसको क्या चाहिए इस बार, मान लो स्काई पाई चाहिए इसके लिए. और मान लीजिए इसमें इसको चाहिए पिलो. क्या चाहिए, पिलो. ठीक, अब देखो क्या होगा. यू क्रिएट 2 प्रोजेक्ट. आपने 2 प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2. ठीक, प्रोजेक्ट 1 के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, पाइथन था, जेंगो था, नमपाई था और रिक्वेस्ट था. प्रोजेक्ट 2 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पाइथन चाहिए, जेंगो चाहिए, स्काई पाई चाहिए और पिलो चाहिए. मान लो ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है. ठीक, अच्छा, जब आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, सो एवरी पैकेज इंस्टॉल्ड ग्लोबली, क्या होता है, ग्लोबली इंस्टॉल होता है. कहां पर इंस्टॉल होता है, व्हाट इज ग्लोबली. ग्लोबली मतलब ये जो आईडीएलई लिखा आपने, देखना ध्यान से, यहाँ पर आपने आईडी लिखा, फिर आप क्या कर रहे हो, राइट क्लिक कर रहे हो, और राइट क्लिक करने के बाद आप जा रहे हो, राइट क्लिक करने के बाद आप जा रहे हो ओपन फाइल लोकेशन, है ना. राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन. फिर अगेन आप यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हो और ओपन फाइल लोकेशन. तो दिस इज अवर ग्लोबल पाइथन फोल्डर. ये जो पाइथन 3.10 यहाँ लिखा है ना, ये हमारा क्या है, ये ग्लोबल पाइथन फोल्डर है. मतलब जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो वो सारे के सारे पैकेज कहाँ पर आते हैं, यहीं पर ही वो सारे के सारे पैकेज आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ लाइब्रेरी के अंदर ये इतने सारे पैकेज आ रहे हैं. ठीक है, ये LITS के अंदर देखोगे, यहाँ पर इतने सारे TK इंटर है. ये तो सारे के सारे पैकेज, जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो, जो भी आप प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हो, तो वो यहाँ पे जाकर के क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, ग्लोबल पाइथन फोल्डर में आकर के इंस्टॉल हो जाते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं. एक प्रोजेक्ट बनाया पाइथन प्रोजेक्ट 1, जिसमें आपको पाइथन जेंगो नमपाई रिक्वेस्ट की जरूरत थी, और ये पैकेज कैसे इंस्टॉल हो गए, एवरी पैकेज इंस्टॉल्ड ग्लोबली. एवरी पैकेज इंस्टॉल्ड ग्लोबली. सारे के सारे पैकेज कहाँ इंस्टॉल हो जाते हैं, ग्लोबली. मतलब यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, इसके अंदर यहीं पर इंस्टॉल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्लोबल पाइथन फोल्डर है. सो एवरी पैकेज इंस्टॉल ग्लोबली. इट मीन्स अगर आपने ये पैकेज भी इंस्टॉल किए, स्काई पाई और पिलो भी इंस्टॉल किया होगा, तो इसका मतलब है नम पाई और रिक्वेस्ट भी यहाँ पर आकर के क्या हो चुके होंगे, ऐड हो जाएंगे. क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. नम पाई भी ऐड हो जाएगा, रिक्वेस्ट. क्यों, क्योंकि सारे के सारे पैकेज क्या इंस्टॉल हो रखे हैं, ग्लोबली इंस्टॉल हो रखे हैं. इसका मतलब है नम पाई और रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली इसमें भी आ जाएंगे. बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी नमपाई रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसमें जाकर के ऐड. क्यों, क्योंकि सारे के सारे पैकेज कहाँ पर है, सब पैकेज यहीं पर इंस्टॉल हो रखे हैं, यहीं पर ही सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो रखे हैं. तो जो भी पैकेज इंस्टॉल होगा यहाँ पर है, लाइब्रेरीज के अंदर है, यहीं पर सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे. ठीक, तो इसका मतलब यह है कि जब आपने प्रोजेक्ट 1 बनाया था, तो आपने पिप इंस्टॉल नमपाई किया होगा, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट किया होगा, तो भी यहाँ पर आ गया. फिर आपने पिप इंस्टॉल स्काई पाई किया होगा, पिप इंस्टॉल पिलो किया होगा, फिर भी यहीं पर आ गया. इसका मतलब है जब आपने प्रोजेक्ट 2 बनाया, तो नमपाई और रिक्वेस्ट भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गए. ठीक, अब आप मान लो अगला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, प्रोजेक्ट 3, और उसमें भी इन दिस प्रोजेक्ट डिफरेंट रिक्वायरमेंट. इस प्रोजेक्ट की भी क्या होगी, कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी. मान लीजिए इसको पाइथन चाहिए, मान लीजिए इसको जेंगो चाहिए, मान लीजिए इसको चाहिए इस बार रेस्ट फ्रेमवर्क, आप एपीआई पे काम कर रहे हो मान लो, और आप इसको चाहिए सिग्नल. ठीक है, और मान लीजिए इसको कुछ और पैकेज चाहिए. ठीक है, मान लीजिए इसको चाहिए टेंसर फ्लो, है ना, मान लो ये. तो होगा क्या, ऊपर के पैकेज भी इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. मतलब ये स्काई पाई पिलो नम पाई रिक्वेस्ट, मतलब इतने पैकेज तो थे ही, और ये पैकेज भी इसमें जाकर के ऐड हो जाएंगे. स्काई पाई भी ऐड हो गया इसमें. क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे पैकेज कैसे इंस्टॉल हो रहे हैं, एवरी पैकेज इंस्टॉल्ड ग्लोबली. ये सारे के सारे पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल हो रहे थे, तो इसने क्या किया, इनको भी इसमें ला करके ऐड कर दिया. So this is not a best approach to make your project globally or to install all the packages globally. So instead of install all the package globally, we work on locally. हमें काम कैसे करना पड़ेगा, locally करना पड़ेगा. So how to work locally?
बाय क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। आप कैसे लोकली काम करोगे किसी प्रोजेक्ट के लिए? बाय क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो व्हाट वर्चुअल एनवायरनमेंट डज? Virtual environment basically provide isolation of your project. Every package installed locally. तो इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी पैकेज किसी अदर प्रोजेक्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे पैकेज कैसे इंस्टॉल हो रहे हैं? ग्लोबली हो रहे हैं। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ग्लोबल पाइथन फोल्डर से उठ के सारे के सारे पैकेज उस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। तो ये ड्रॉबैक है। इससे घाटा क्या होगा, नुकसान क्या होंगे? When you deploy your project, unnecessary package also will deploy in your server. Loading, performance issue, slow slow performance, है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो अब आप कैसे काम करोगे? आपको लोकली काम करना है। लोकली कैसे काम करते हैं? लोकली ऐसे काम करते हैं। देखो, आप फिर से आप प्रोजेक्ट क्या बनाओगे? प्रोजेक्ट आपने मान लो बना दिया 4। अब इस बार आप सबसे पहले क्या बना लो? क्रिएट कर लो क्या? वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या कर लो? क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या करता है? इट प्रोवाइड आइसोलेशन फॉर योर प्रोजेक्ट। ये आपको प्रोजेक्ट को आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। आइसोलेशन मींस एवरी पैकेज इंस्टॉल्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई एक पैकेज दूसरे प्रोजेक्ट पैकेज से इंटरलेट नहीं करेगा। कोई एक पैकेज दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर के ऐड नहीं होगा। एवरी पैकेज इंस्टॉल्ड यूनिकली। So after creating a project, create a virtual environment. So how to create virtual environment? Let me tell you. Okay, अभी बताऊंगा। पहले क्या है कि जैसे once you create project 4, so after creating a project 4, don't install any package. क्योंकि if you install any package, every package installed globally. That is a drawback. So when you create project, first of all, after creating a project, create a virtual environment. So once you create a virtual environment, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करेगा? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट इज नथिंग। वर्चुअल एनवायरनमेंट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट इज नथिंग। वर्चुअल एनवायरनमेंट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। इट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। ओके, ये एक फोल्डर, मान लीजिए ये फोल्डर VNV है। ये क्या है? फोल्डर का नाम। ये मान लीजिए आपने एक फोल्डर बना लिया, दिस इज फोल्डर नेम। ये जैसे ही आप VNV बनाते हो, VNV के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। So when you create a virtual environment, so what is virtual environment? Virtual environment is nothing. Virtual environment is just a folder. आप एक folder बनाते हो। So when you create a virtual environment, then you will get two things inside VNV folder. VNV folder name है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया प्रतीक, जैसे मैंने लिख दिया शुभम, मैंने लिख दिया अनन्या, मैंने लिख दिया दीपांशु। It is like a folder name. You can give any name, but I recommend you give VNV. मतलब मैं ये recommend कर रहा हूँ कि आप VNV, तो otherwise you can give any name. Folder का नाम तो आप कोई भी दे सकते हो ना। VNV इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं रियल टाइम में, जो भी हम फंक्शंस बनाते हैं, उनका मीनिंग होता है। मीनिंगलेस कोई भी काम नहीं करते। तो इसलिए आप VNV दोगे तो VNV अच्छा लग रहा है, फोल्डर का नाम है VNV, है ना। सो VNV नाम से आपने क्या कर लिया है? फोल्डर बना लिया। सो व्हेन यू क्रिएट VNV, जैसे ही आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, देन यू विल गेट virtual environment is nothing. Virtual environment you will get a folder, and inside this folder you will get two files. आपको इसके अंदर दो फाइलें मिलती हैं। पहली फाइल क्या मिलेगी? पहली फाइल इसके अंदर मिलेगी आपको पाइथन आ जाएगा इसके अंदर, और दूसरा आ जाएगा पिप। और इस पिप के अंदर क्या होगा? नथिंग। ये पिप जो होगा एकदम एम्प्टी होगा। ठीक है, ये पिप जो होगा ये एम्प्टी होगा। अच्छा, इसके अंदर ये आएगा कैसे? पाइथन और पिप ये आएगा हमारा कैसे? ग्लोबल गेटिंग फ्रॉम ग्लोबल पाइथन फोल्डर। ये कहां से लेकर के आएगा? गेटिंग फ्रॉम ग्लोबल। अभी मैं करके दिखाऊंगा, देख लो ध्यान से, है ग्लोबल पाइथन। जो मैं बता रहा हूँ करके दिखाता हूँ। ग्लोबल पाइथन फोल्डर ये आएगा कहां से? ग्लोबल पाइथन फोल्डर। सो what is the need of virtual environment? Let's suppose if interviewer asks what is the need of virtual environment, हमें virtual environment की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो why we need virtual environment? Because we create virtual environment to provide isolation for our project. If you don't give a virtual environment of your project, so every project has specific requirement. Every project has requirement for a library. So every library installed globally. ठीक है, तो अगर वो ग्लोबली इंस्टॉल होगी तो प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। सो दैट इज द ड्रॉबैक।
So instead we install all the package globally, we install locally with the help of virtual environment. So by creating virtual environment provide isolation for our project. So after creating project, first of all create a virtual environment. आप क्या करो, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ. वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करेगा, ये आइसोलेशन प्रोवाइड कराएगा. वर्चुअल एनवायरनमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर. लेट सपोज VNV is my folder name of virtual environment. So in this folder you will get two files. In this folder you will get two files. First of all python.exe and the second one is pip. Okay, and in this pip nothing. इस पिप के अंदर क्या होगा, नथिंग, कुछ भी एम्प्टी होगा पिप. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट यू इंस्टॉल लाइब्रेरीज. अब आप अपनी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लो. ओके, आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लो. तो वो लाइब्रेरी जो होंगी वो उस प्रोजेक्ट से स्पेसिफिक हो जाएंगी, उसमें अदर लाइब्रेरी जो होगी वो ऐड नहीं हो पाएगी. अभी मैं करके दिखाऊंगा तो और दिमाग में आएगा. ये समझ अभी थोड़ा सा मैंने बताया है बस कि होता क्या है, प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे Django में. So when you create any project in Django, first of all you need to create virtual environment. बस एक बार बनाना है virtual environment और उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट सब करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे मैं बता रहे हैं. तो अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, स्टेप्स या प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग, ये सब करके आना है कल. ठीक है, प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट. अभी कर पाओ तो अच्छी बात है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का. तो सबसे पहले आपको क्या करो, क्रिएट अ प्रोजेक्ट फोल्डर. सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद वर्चुअल बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट. लेयर की डायरेक्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चालू कर दी. ऐसे काम नहीं करना है जो ऊपर कर रहे थे, है ना, ऐसे काम नहीं करना है. काम कैसे करना है, जैसे ही प्रोजेक्ट बनाओगे उसके बाद क्या बनाओगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले आपको बनाना है क्रिएट अ प्रोजेक्ट फोल्डर. एनी डायरेक्टरी कहीं पर भी अपने ड्राइव में बना लीजिए. तो मैं बनाने जा रहा हूँ, देखिए. तो देखिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आई ड्राइव में. ठीक है, सबसे पहले हमें बनाना है क्रिएट अ प्रोजेक्ट फोल्डर. तो यहाँ आई ड्राइव में बना ले रहा हूँ, ट्रेनिंग वाले में यहाँ पर बना देता हूँ मैं. ठीक, तो फोल्डर बना लीजिए आप. फोल्डर बनाना सबको आता ही होगा. यहाँ पर आपने लिख दिया बैच 10 AM. क्या लिख दिया मैंने, बैच 10 AM Django. ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया बैच 10 AM Django. ये समझ गए. इस फोल्डर के अंदर चले जाओ और यहाँ पर फिर से एक फोल्डर बना लो जिसका नाम कर दो माई ऑल प्रोजेक्ट्स. तो इसके अंदर मैं सारे प्रोजेक्ट को रखूंगा. अरे आप नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाऊंगा. तो माई ऑल प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना. तो इसके अंदर मैं सारे प्रोजेक्ट को रखूंगा अपने. मतलब सबसे पहले मैंने फोल्डर बनाया बैच 10 AM Django. फिर उसके अंदर गया, फिर मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम क्या है, माई ऑल प्रोजेक्ट. और इनसाइड माई ऑल प्रोजेक्ट आई एम पुटिंग ऑल माई प्रोजेक्ट. इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट को रखूंगा. सर एक तो लेट डाउट है. सपोज मैंने, हाँ बताओ. सर ये इसको प्रोजेक्ट को सी में बनाऊं, डी या ई में, सर किसी में बना सकता हूँ? किसी में यार, किसी भी ड्राइव में बनाओ, डी में बनाओ, ई में बनाओ, सी में बनाओ, डेस्कटॉप में बनाओ, डॉक्यूमेंट से बनाओ, डाउनलोड से बनाओ, कहीं भी बनाओ. ठीक, देखो इधर, ओके सर, थैंक यू. अरे यार इधर देखो, इधर यहाँ से नजर हटी तो घटना घट गई. सब नजर हटनी नहीं चाहिए बिल्कुल. यहाँ पर आपने लेट सपोज मैंने माई ऑल प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया प्रोजेक्ट 1. मान लो जैसे मैं यहाँ समझा रहा था वही समझाने जा रहा हूँ फिर से. मान लो मैंने बना दिया प्रोजेक्ट 1, ये प्रोजेक्ट 4 था, मैंने मान लो प्रोजेक्ट 1 बना दिया. समझ गए ये. देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या किया मैंने. सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया बैच 10 AM Django. फिर मैंने एक फोल्डर बनाया माई ऑल प्रोजेक्ट्स. फिर मैंने एक फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट 1. अब मुझे क्या बनाना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट. देखो तो ध्यान से कैसे वर्चुअल बनाऊंगा, देखिएगा यार. अब आपको क्या करना है, आपने ये बना लिया. तो प्रोजेक्ट फोल्डर आपने कैसे बनाया, सबसे पहले आपने लिखा बैच 10 AM Django नाम से एक फोल्डर बना लिया. ठीक, उसके बाद फिर से आपने एक फोल्डर बनाया माई ऑल प्रोजेक्ट्स नाम से एक फोल्डर बना लिया. और उसके बाद आपने एक फोल्डर और बना लिया जिसका नाम रख दिया प्रोजेक्ट 1. दूसरा स्टेप, अब आपको क्या करना है, ओपन योर प्रोजेक्ट विथ CMD. अब आपको अपने प्रोजेक्ट को CMD के साथ ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के साथ ओपन करना है इसी पाथ से. तो कैसे ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट 1 पे डबल क्लिक करो और यहाँ पर जाओ, सेलेक्ट कर लो. बाहर क्लिक कर लेना है, फिर सेलेक्ट कर लिया. अरे ये सेलेक्ट करने के लिए यहाँ बाहर क्लिक कर लिया करो, समझ गए. और यहाँ पर क्या लिखोगे,
CMD क्या लिखोगे? देखो अभी आपको वही पाथ मिल जाएगा, पूरा शॉर्टकट है ये। आई ड्राइव में गए, बैच 10 AM जेंगो माई ऑल प्रोजेक्ट में तो आ गया ना। नहीं तो आप क्या करते हैं, CD/ पहले आई ड्राइव में आते हैं, फिर CD बैच लिखते 10 AM जेंगो, फिर एक फोल्डर में आते हैं, है ना, फिर लिखते हैं CD, ये आप थोड़ा बहुत तो आता होगा आप लोग को, माई ऑल प्रोजेक्ट्स, फिर ऐसे आते हैं, फिर लिखते हैं CD, फिर लिखते हैं क्या, प्रोजेक्ट 1। ये देखो इतना करने से अच्छा मैंने क्या किया, देखो फिर से देखो क्या किया, इधर देखो प्रोजेक्ट 1 पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, तो प्रोजेक्ट 1 को मैंने CMD में ओपन कर दिया इसी पाथ से। ये देखो ये शॉर्टकट में ओपन हो गया, ये समझे? तो यही था ये, ओपन योर प्रोजेक्ट विद CMD। आपने अपने प्रोजेक्ट को CMD के साथ ओपन कर दिया। इतना करिए फटाफट सब लोग, इतना करो, इतना करिए सब लोग, मैं रुक रहा हूँ, मैं रुका हूँ, ठीक है, इतना करिए। सर हमें क्या तो करना है, बैच, बैच 10 AM बनाने की जरूरत नहीं है, माई ऑल प्रोजेक्ट से स्टार्ट अरे कर यार सकते हैं। अपना नाम लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है फोल्डर का नाम। तो मैंने एक रेलिवेंट दिया है क्योंकि मैं डेली इसमें पढ़ाऊंगा, मैं तो अपने ओके हिसाब से सर। काम करूंगा ना। आपको जो बनाना है बनाओ, साहिल, दीपक, जो नाम लिख रहे हो, फोल्डर का नाम है वो माई ऑल प्रोजेक्ट, और इसके अंदर मैंने बना दिया प्रोजेक्ट 1। चाहो तो मैं जो बना रहा हूँ वैसे स्टेप फॉलो करो, आपकी मर्जी। और इसको आप कहाँ पे ओपन कर लेना, यहाँ पे ऐसे ओपन कर लो, इतना हो जाए तो बताओ मुझे। डन सर। तो ऐसा ही पाथ आ रहा है यहाँ, प्रोजेक्ट 1 आ गया ना। ठीक, अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए भैया वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल भी तो होना चाहिए। तो अगला स्टेप क्या होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करने की कमांड क्या होगी, पिप इंस्टॉल वर्चुअल, क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। दिस इज द कमांड टू इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। लिखूं मैं यहाँ पर, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ये देखो आप लोग भी लिखिए और एंटर मारिए, और नेट होना चाहिए ऑफलाइन, ठीक है। ये देखो मेरे में क्या लिखा क्या रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे में वर्चुअल पहले से ही है। आप लेकिन इंस्टॉल कर लीजिए, लिखिए, इतना करिए सब लोग, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ठीक है, तुम्हारे में भी है, तो जिनके में ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है इसका मतलब है उनके में इंस्टॉल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्जन चेक करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या है, हाउ टू चेक वर्चुअल इन्वायरमेंट वर्जन, वर्चुअल इन्वायरमेंट का वर्जन चेक करिए। तो वर्जन चेक करने के लिए लिखते हैं वर्चुअल env और हाइफन हाइफन वर्जन। तो यहाँ लिखो वर्चुअल env हाइफन हाइफन वर्जन। ये देखिए, तो मेरे में वर्चुअल इन्वायरमेंट का वर्जन है 20.14.1। आप इंस्टॉल करिए और वर्जन चेक करिए, इतना हो जाए तो बताइए, हो गया? हाँ कर लो, नेट का इशू होगा, स्लो आता है नीचे थोड़ा। वर्चुअल env हाइफन हाइफन वर्जन, और पहले इंस्टॉल करोगे तभी तो वर्जन चेक करोगे, तो पहले इंस्टॉल कर लो। तो पिप इंस्टॉल वर्चुअल env, आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट चेक द वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्जन। सो हाउ टू चेक वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्जन, वर्चुअल env स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। तो माई वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्जन इज 20.14.1। क्लियर? अब हमें ओके सर, बनाना डन। है वर्चुअल, ओके, अब हमें बनाना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब बनाना है वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो 4 नाउ क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने की कमांड क्या होती है, देखो लिखते हैं वर्चुअल env और यहाँ लिखते हैं एनी फोल्डर नेम। वर्चुअल इन्वायरमेंट की कमांड है ये, क्या लिखते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट और एनी फोल्डर नेम। तो मैंने आपको बताया वर्चुअल env और फोल्डर का नाम मैंने क्या बताया, क्या दिया करो, BNB। आप यहाँ प्रतीक दो, शुभम दो, राजेश दो, दीपक दो, कुणाल दो, वट कुछ भी देना चाहते हो दो, बट मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, VNV दो। तो जैसे ही आप वर्चुअल VNV लिखोगे, देन इसके अंदर आपको 2 फाइल मिल जाएगी, एक मिल जाएगा पाइथन और दूसरा क्या मिल जाएगा, पिप। और इसके अंदर क्या होगा, एम्प्टी। ये पिप क्या होगा, एम्प्टी, बिल्कुल खाली होगा। ठीक है, दिखाऊं करके, ये देखो इधर,
ये देखो इधर, ये हमारा कहाँ गया प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है। अभी इसके अंदर देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ है, कहीं बना है? अब मैं इसके अंदर ही तो बनाने जा रहा हूँ, तो क्या कमांड मैंने बताई, मैं लिखूंगा वर्चुअल env और फोल्डर नेम, एनी फोल्डर नेम, वर्चुअल env फोल्डर नेम vnv। मैंने बोला फोल्डर का नाम आप क्या दिया करो, vnv। रिकमेंडेशन है ये, आप जो देना है दो। एंटर, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा अभी vnv नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। तो एंटर करते हैं, हाँ एंटर, ठीक। वर्चुअल एनवी और फोल्डर का नाम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ एक फोल्डर बन जाएगा। ये एंटर हुआ नहीं क्या, हो गया। तो आप लोग लिखिए वर्चुअल एनवी और फोल्डर का नाम स्पेस दे करके, हो गया। अभी मेरा हो रहा है, एक मिनट बस, ये रुक गया। हाँ अब आ गया, अब आ गया, ठीक है। ये आ गया वीएनवी नाम से, देखो फोल्डर बन करके आ गया। ठीक है, अभी देखो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये पता है क्या कर रहा है, ये ग्लोबल पाइथन फोल्डर के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ग्लोबल पाइथन फोल्डर। और ग्लोबल पाइथन फोल्डर कहाँ पर है, मैंने भी दिखाया था ना, आईडीएलई में जा करके वो वहां पर होता है ना ग्लोबल पाइथन फोल्डर, वहां पर जा रहा है और वहां से दो चीजें उठा करके लेके यहाँ पर रख दे रहा है। इस फोल्डर के अंदर क्या रख देगा, पाइथन रख देगा और पिप रख देगा, नहीं जैको नहीं, पाइथन और पिप रख देगा। पाइथन मैंने बताया ना अभी, यहाँ पर देखो क्या रख देगा, पाइथन रख देगा। और ऊपर भी समझाया था वी एन पी क्या होता है, वी एन वी इज नथिंग जस्ट अ फोल्डर। और ये इट विल गिव यू टू थिंग्स, पाइथन और पिप। ये पाइथन और पिप आएगा कहाँ से, ये आएगा गेटिंग फ्रॉम ग्लोबल पाइथन फोल्डर। ये ग्लोबल पाइथन फोल्डर के पास जाएगा, ये कमांड, ये जो आपने कमांड बनाई है वर्चुअल env फोल्डर का नाम, ये जाती है ग्लोबल पाइथन फोल्डर के पास, और वहां से उठा करके लेके आ जाती है पाइथन और पिप, और इसके अंदर ला करके क्या करती है, रख देती है। तो देखो अभी ये कमांड चल गई पूरी, ये देखो चल गई, है ना। सर ये वर्चुअल पूरी कमांड, एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं हुआ सर, वो डेट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइज नहीं हो रही है सर। वो अभी तुम्हारी स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ कुलदीप, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है कुलदीप, हेलो, ओके सर। अभी देखता हूँ मैं। तो ये आया सबसे पहले, सर अब हो गया आप सर, इसको देखो फोल्डर जरा, बन गया। ओपन कर। हाँ अब इसको ओपन करके देखो, एल के अंदर जाओ, एल नहीं स्क्रिप्ट के अंदर जाओ, स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर देखो आपको पिप भी मिल गया और पाइथन भी मिल गया, लेकर के आ गया ना। और इसके अंदर कोई भी पैकेज नहीं है। अब आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पैकेज इंस्टॉल करोगे। देखो अब करना क्या है, अब देखो करना क्या है, अभी आपका जो, देखो मैं सीएलएस कर दूं पहले, क्लियर स्क्रीन। अभी जो आपका प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट 1, अभी आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये तो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट 1। अभी ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये ग्लोबली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, तो मतलब अब चेक कैसे करें कि आपका प्रोजेक्ट लोकली कनेक्टेड है या ग्लोबली। तो अगले स्टेप क्या है, चेक योर प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड लोकली और ग्लोबली। अब आपको ये चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो लोकली कनेक्टेड है या ग्लोबली। तो उसकी कमांड होती है, कमांड है पिप फ्रीज। क्या होती है, पिप फ्रीज। तो लिखे पिप फ्रीज, तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं पिप FREEZ फ्रीज। तो देखिएगा इसके अंदर बहुत सारे पैकेज आ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट 1 में बहुत सारे पैकेज आकर के ऐड हो चुके होंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे पैकेज आकर के क्या हो चुके होंगे, ऐड हो चुके होंगे प्रोजेक्ट 1 में। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने पिप फ्रीज, ये टाइप करिए कमांड पिप फ्रीज, type this command pip freeze to check। सुबह उठे थे, मैंने फोन किया था। अरे भाई कहाँ देखोगे, एक मिनट बेटा होल्ड करना आप लोग। सर आ गया सर, बहुत सारा फोल्डर।
ऐसी तुमसे बना ले। तो ये देखिए, जैसे आपने टाइप किया पिप फ्रीज, देन यू आर गेटिंग दीज टाइप्स ऑफ फाइल। तो ये फाइल आई कहाँ से? ये आई ग्लोबल पाइथन फोल्डर से। ये सारी की सारी ग्लोबल पाइथन फोल्डर से आकर के यहाँ पर आ गई। बल्कि आपने तो अभी प्रोजेक्ट 1 के लिए कोई भी पैकेज क्या इंस्टॉल किया आपने अभी तक? बताओ। अभी आपने बिल्कुल ये फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया था प्रोजेक्ट 1, लेकिन इसके अंदर आपने देयर इज नो पैकेज, आपके अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं किया था। लेकिन जैसे आपने पिप फ्रीज किया, आपको इतने सारी पैकेजेस दिख गए। देखो जैंगो दिख रहा है, पिलो दिखने लगा, देखो नमपाई दिख रहा है, रिक्वेस्ट भी दिख रहा है, टीजर डेटा, एसक्यूएल पास, यूआरएल, वर्चुअल एनवायरनमेंट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस यस सर, यू आर हेलो? ऑडिबल। यस सर। हाँ हाँ, यस यस सर, यस। यू आर डेफिनेटली सर। तो बट ये सारे ये, बट यस, सर, तो बट ये हमें सारे देखो नम यहाँ से पे आ गए। नम पे किलो नहीं दिखा है। हाँ, ये सारे पैकेज देखो यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये कहाँ से उतर के आए हैं इस प्रोजेक्ट में? ये ग्लोबल पाइथन फोल्डर से उतर के आ गए। तो आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या बना लिया? वर्चुअल एनवायरनमेंट। लेकिन आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी एक्टिवेट नहीं है। क्या नहीं है? एक्टिवेट। अगर एक्टिवेट होता तो ग्लोबल पाइथन फोल्डर से उठा करके पैकेज ना लाता। तो अगला स्टेप क्या होगा? एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट। आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना तो लिया, आपने वीएनवी नाम से फोल्डर बना तो लिया है ये, लेकिन आपने इसको अपने प्रोजेक्ट में एक्टिवेट नहीं किया है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट। आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। उसकी कमांड क्या होती है? देखिए इधर, उसकी कमांड होती है फोल्डर का नाम, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर का नाम। मैं ऐसे पहले लिख दे रहा हूँ, फोल्डर का नाम लिखते हैं / स्क्रिप्ट / एक्टिवेट। मतलब क्या कमांड हो गई? फोल्डर का नाम, वीएनवी, स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। समझ गए ये बात? यही कमांड टाइप करूँ वहां पर? देखिए इधर, यहाँ क्या लिखूंगा? वीएनवी। अच्छा, अब मेरा वीएनवी, आपने हो सकता है कुछ और फोल्डर का नाम दिया हो। कॉपी पेस्ट ना करना, अपना दिमाग लगाना। जो आपने फोल्डर का, आपने अगर कुलदीप दिया तो कुलदीप / स्क्रिप्ट्स / अरे यार, एक्टिवेट, VATE। ठीक है, ये देखो, इधर देखिए, देखो ये एक्टिवेट हो गया ना। अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो ये फोल्डर का नाम यहाँ दिखने लगेगा आपको। इसका मतलब है ये जो देखो इधर, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट से क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। आप करो पिप फ्रीज, अब चेक करो, फिर से लिखो पिप फ्रीज। क्या अब इसके अंदर कुछ होगा? अब इसके अंदर कोई भी पैकेज नहीं आएंगे। इसका मतलब है यू प्रोवाइड योर प्रोजेक्ट आइसोलेशन। आपने अपने प्रोजेक्ट को आइसोलेशन प्रोवाइड कर दिया विद वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ऐसे काम करते हैं यहाँ पे। वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब आज समझ में आया होगा आपको कि व्हाट इज द नीड ऑफ वर्चुअल, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट। एक्चुअल में वर्चुअल एनवायरनमेंट की नीड क्यों है? हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते क्यों हैं? बिकॉज विदाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट यू आर गेटिंग सो मेनी फाइल्स फ्रॉम ग्लोबल पाइथन फोल्डर दैट डिस्टर्ब योर प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ माई प्रोजेक्ट आई इंस्टॉल माई लाइब्रेरीज, है ना। मैं अपनी लाइब्रेरी किसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करूंगा? अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ये थोड़ी ना कुछ भी मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी लाइब्रेरी आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी फाइल विल नॉट बी एडेड इन माई प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो हो सकता है बहुत सारी चीजें ले रहा हो और एडिशनल लाइब्रेरी भी आ जा रही है, तो वो तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर क्या कुछ आया? नथिंग। क्योंकि ये जो पिप आया हुआ है ना वीएनवी के अंदर, उसके अंदर कोई भी पैकेज नहीं है। तो यू प्रोवाइड आइसोलेशन फॉर योर प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या कर दिया? आइसोलेशन प्रोवाइड कर दिया। आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, मतलब एट ए टाइम यू कनेक्ट लोकली और ग्लोबली। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को चाहे लोकली भी कर सकते हो, ग्लोबली भी कर सकते हो। सो हाउ टू कनेक्ट लोकली और ग्लोबली? कैसे आप एक बार में लोकली और एक बार में ग्लोबली कर सकते हो? डीएक्टिवेट। क्या कमांड होती है अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है? तो देखो, हाउ टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट। हाउ टू कनेक्ट लोकली, और लोकली मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड ग्लोबली। हाउ टू कनेक्ट लोकली और ग्लोबली। तो लोकली का मतलब यहाँ किससे है? वर्चुअल एनवायरनमेंट से। तो हाउ टू कनेक्ट लोकली और ग्लोबली, कैसे आप लोकली कनेक्ट करोगे और कैसे आप क्या करोगे? ग्लोबली कनेक्ट करोगे। सो हाउ टू कनेक्ट लोकली और ग्लोबली, तो बस यहाँ पे क्या लिख देना है? डीएक्टिवेट। देखो यहाँ पे क्या लिख दो? यहाँ लिखो डीएक्टिवेट। जैसे आपने डीएक्टिवेट किया, फिर से आप किससे कनेक्ट हो गए? देखो, आप ग्लोबली कनेक्ट हो गए। फिर से आप कैसे कनेक्ट हो गए? ग्लोबली। अब आप फिर से लिखो पिप फ्रीज, तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे फिर से मिल जाएगा। क्योंकि यार ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है? अभी नहीं है। देखो कहाँ आ रहा है वीएनवी लिख के। देखो, आपने अपने प्रोजेक्ट को फिर से किससे कनेक्ट कर लिया? तो प्रोग्रामर के हाथ में होता है, प्रोग्रामर के हाथ में सारी पावर है। प्रोग्रामर चाहे अपने प्रोजेक्ट को जब चाहे ग्लोबली कनेक्ट कर दे, जब चाहे लोकली कर दे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? लोकली होना चाहिए।
अब आपको फिर से इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक्टिवेट करना है तो क्या लिखेंगे VNV फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट फॉरवर्ड स्लैश एक्टिवेट, यही करना है आपको। देखो पिप फ्रीज नथिंग लोकली, ये देखो फिर से, अब फिर से ये देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। FR ना, FR तो अब आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि आपका ये देखो नथिंग CLS, समझ गए, पिप FR फ्रीज, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी पैकेज नहीं होगा। फिर से ग्लोबली कनेक्ट करना है तो डीएक्टिवेट, जैसे ही डीएक्टिवेट लिखूंगा फिर से ग्लोबली कनेक्ट हो जाऊंगा, और फिर फ्रीज करूंगा तो बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। तो आपका प्रोजेक्ट locally होना चाहिए with virtual environment. So how to create virtual environment, how to work with Django project. So always create virtual environment. आप रियल टाइम जब भी कहीं कंपनी में काम करोगे तो वहां आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे लाइव प्रोजेक्ट में काम होता है मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ, खिचड़ी मत बनाइएगा, अपना दिमाग में चलाइएगा। जब भी कोई भी कमांड देख लीजिएगा, ये भी मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, ये देखते नहीं है और चल रहा है प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है। भैया प्रोजेक्ट चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि सारी की सारी ग्लोबल पाइथन फोल्डर में आपका जेंगो भी इंस्टॉल है। अभी आपने जो जेंगो इंस्टॉल किया था ना सब इंस्टॉल, वो कैसे इंस्टॉल किया था, वो ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ है तभी तो आ रहा है। जब आप फ्रीज करते हो कि आपको जेंगो मिल रहा होगा, अभी लोकली इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ इसमें जेंगो की फाइलें मिलेंगी। जैसे आप लिखिए यहाँ पिप इंस्टॉल जेंगो, अगर आपने यहाँ लिख दिया पिप इंस्टॉल जेंगो तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल वर्चुअली इंस्टॉल होगा, मतलब ये इस प्रोजेक्ट के लिए अभी क्या कर रहे हो आप, ये लोकली इंस्टॉल होगा। मतलब अब आप अगर आप यहाँ लिखोगे पिप इंस्टॉल जेंगो तो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए जेंगो इंस्टॉल होगा, इस प्रोजेक्ट 1 के लिए जेंगो इंस्टॉल होगा। ये बात समझ में आई? ये देखिए जैसे आपने यहाँ पे इंस्टॉल जेंगो लिखा तो अब ये जेंगो इंस्टॉल में होगा इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब आप जब पिप फ्रीज करोगे तो जेंगो से रिलेटेड आपको फाइलें मिलेंगी, बाकी फाइलें नहीं मिलेंगी इस प्रोजेक्ट के लिए, अननेसेसरी फाइलें नहीं मिलेंगी। तो अब आप ये जो जेंगो पहले जो आपने जेंगो इंस्टॉल किया था वो ग्लोबली हो गया है। अब जो ये आप जेंगो इंस्टॉल कर रहे हो ये इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट 1 के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो लोकली है। योर प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपका प्रोजेक्ट जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। हो गया ना? चलिए एक किसी की एरर आ रही थी वो हम देखते हैं, पहले एक बार इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, अभी थोड़ा टाइम लेगा मेरे में तो। हाँ अब होने लगा। सर तो तो नोटपैड का स्क्रीन ये दिखाई चार देगा। ये 4 फाइलें होती है इसकी मेन, टीजेड डेटा, एसक्यूएल पार्स, ASGI आ रही है फॉर जेंगो। ये मेन 4 फाइलें इसकी होती हैं। जब जेंगो इंस्टॉल होता है तो ये 4 पैकेज इंस्टॉल होते हैं। टीजेड डेटा आप देखना चाहते हो तो पिप फ्रीज करो, देखो आप कौन कौन सी फाइलें आपको मिल रही है, लिखिए पिप फ्रीज ये इंस्टॉल होने के बाद। हाँ अब आप बोल के क्या कह रहे हैं? सर तो नोटपैड का स्क्रीन दिखाएगा। नोट पैड का, एक मिनट, ये मैंने सारे स्टेप यहाँ लिख दिए हैं। आप इसको 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार 100 बार रिपीट करिएगा तो आपके तुरंत फटाफट कर लो। ये 2 मिनट का काम था वैसे, लेकिन समझाने में तो तो बहुत वर्चुअल टाइम लगेगा, एनवायरनमेंट मैं तो इंस्टॉल थोड़ा नहीं सा कर हुआ था देता हूँ। मेरा। है, हाँ मैं तो आ रहा हूँ, आप ही वर्चुअल के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट, आ रहा हूँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट का देखने क्या प्रॉब्लम हो रही है।
ये हो गया हमारा। अब आप करिए यहाँ पर पिप फ्रीज। अब मैं अगर पिप फ्रीज करूंगा तो मुझे इस प्रोजेक्ट 1 से रिलेटेड यही फाइलें मिलेंगी, ASGIREF, Django, SQL पास और TZ डेटा, है ना। अगर मैं फिर से ग्लोबली कनेक्ट होना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, जैसे मैं DB लिखूंगा फिर से ग्लोबली कनेक्ट हो गया। फिर मैं लिखूंगा अगर पिप फ्रीज, पहले मैं CLS कर लेता हूँ, तब मैं लिखूंगा पिप फ्रीज, देन आई एम गेटिंग मैनी फाइल्स, क्योंकि वो सारी की सारी फाइलें कहाँ से मिल रही हैं, ग्लोबली। फिर से मैं लोकली कनेक्ट होना चाहता हूं तो एक्टिवेट करूंगा VENV, फोल्डर का नाम, स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। ये देखिए ये स्क्रिप्ट की स्पेलिंग गलत है, SCRIPTS, स्क्रिप्ट एक्टिवेट। फिर मैं लिखूंगा पिप फ्रीज, अरे यार स्लैश हो गया, यहाँ लिखूंगा पिप फ्रीज। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था, अब लेकिन आपको क्या मिलेगा, सिर्फ Django आपने इंस्टॉल किया तो Django से रिलेटेड पैकेज मिलेंगे, बस अननेसेसरी पैकेज नहीं मिलेंगे। जो पैकेज आप इंस्टॉल करोगे वो पैकेज आपको मिलेगा। चलिए अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, किसका था एरर, आई थिंक कुलदीप। यस सर, यस हाँ सर। कुलदीप, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। कुलदीप शर्मा, ओके। कुलदीप, नाउ यू आर अ प्रेजेंटर। कुलदीप, शेयर योर स्क्रीन। यस। सर ये देखिए, Pip install could not find a version satisfy the requirement, version done, no matching distribution found or version। आपने स्पेलिंग सही लिखी है, VIRTUAL, अच्छा TULA अच्छा, ही लिखा है क्या, स्पेलिंग की मिस्टेक है गलत मुझे है, लग गलत रहा है, है। गलत लिखो, हाँ स्पेलिंग हाँ मिस्टेक। फिर से लिखो, फिर से लिखो, पिप इंस्टॉल VIRTUAL विदाउट स्पेस ENV, एंटर करो, प्रेस एंटर। है। हो गया सर। अब देखते हैं, हो गया ना। अब इसको क्या करोगे, इसके बाद एक्टिवेट करोगे, तो नहीं, वर्चुअल एनवायरनमेंट तो अभी तो आप इंस्टॉल कर रहे हो, अब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाओगे, तो बनाते कैसे, वर्चुअल ENV और फोल्डर का नाम लिखो, लिखो अब लिखो, मैं बता रहा हूँ, लिखो वर्चुअल ENV। देखो अभी पहले अपने फोल्डर में जाओ, एक मिनट एक मिनट, पहले ये जो नीचे फोल्डर आ रहा है इसमें जाओ जरा, हाँ इसमें प्रोजेक्ट 1 में, हाँ देखो इसके अंदर अभी नहीं है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं है ना, जी सर। है ना, नहीं है ना अभी। आप जी हाँ सर। हाँ, अब जाओ जरा कमांड, अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, हाँ थोड़ा सा इसको साइड करो, थोड़ा सा हल्का से इधर करो देखने के लिए कि फोल्डर बन रहा है कि नहीं, हाँ इधर से फोल्डर करो, हल्का से इधर करो, हाँ बस बस। अब वर्चुअल ENV स्पेस स्पेस। स्पेस VENV, फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो, दो लेकिन VENV दो, VENV, अभी प्रैक्टिस के लिए आप यही दो, हाँ एंटर प्रेस करो, प्रेस एंटर। हाँ अभी देखना यहाँ पर एक फोल्डर बनेगा, देखो बना, जी सर। और इस फोल्डर के अंदर आपको दो चीजें मिल रही होंगी, पाइथन और पिप। अब इसको एक्टिवेट करो, अभी लिखो, अभी CLS लिखो, पहले क्लियर स्क्रीन करो, CLS क्लियर स्क्रीन, हाँ। अब लिखो पिप फ्रीज, देखो अभी किससे कनेक्टेड हो आप, पिप स्पेस स्पेस, फ्रीज। हाँ स्पेस दो, हाँ फ्रीज, FREEZE, एंटर, प्रेस एंटर, राइट। ये देखो इतनी सारी फाइलें मिल रही हैं। अब ये सारी फाइलें आपको कहाँ से मिल रही हैं, ग्लोबल पाइथन फोल्डर से। अब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने बना तो लिया है,
अब उसको आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो लिखो VENV, एक्टिवेट करने की कमांड में बता रहा हूँ, मैंने नोटपैड में लिखा, शेयर कर दूंगा। हाँ, VENV फॉरवर्ड स्लैश एंटर के ऊपर होगा। नहीं नहीं, ये तो बैकवर्ड है। हाँ दिस वन, हाँ दिस वन, स्क्रिप्ट्स SCRIPTS, राइट, नहीं नहीं SCRIPTS, हाँ राइट, एंड देन एक्टिवेट फॉरवर्ड स्लैश, फिर से फॉरवर्ड स्लैश, हाँ राइट, एक्टिवेट, प्रेस एंटर। हाँ अब लिखो पिप फ्रीज, नहीं नहीं FREEZE, FREEZE, हाँ एंटर करो। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, ये देखो कुछ भी नहीं है ना। यस सर। अब आप जेंगो इंस्टॉल करो इस प्रोजेक्ट के लिए, लिखो पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस जेंगो, एंटर। देखो जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब आप लिखोगे पिप और फ्रीज, तो आपको जेंगो से रिलेटेड सी फाइलें मिलेंगी इसकी, टीजेड डेटा, एसक्यूएल पास, ASGI REF, और क्या था, जेंगो। हाँ, टीजेड डेटा, एसक्यूएल पास, ASGI REF और जेंगो। अब आप लिखो पिप फ्रीज, फिर से लिखो पिप फ्रीज, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से पैकेज आए हैं अभी। तो इसके अंदर कौन से पैकेज अभी हमने इंस्टॉल किया, सिर्फ जेंगो वाला। तो जेंगो से रिलेटेड पैकेज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये देखो, फिर से लिखो यहाँ डीएक्टिवेट, लिखो डीएक्टिवेट, लिखो DE और एक्टिवेट ACT, हाँ। तो ये फिर से आप ग्लोबल कनेक्ट हो जाओगे, एंटर करो, एंटर, ये देखो ग्लोबली हो गया। फिर से लिखो पिप और फ्रीज, तो पिप आपको अब फ्रीज। सारी फाइलें कहाँ से, हाँ अब आपको नहीं, पिप फ्रीज, हाँ लिखो पिप फ्रीज से क्या चेक करते हैं कौन कौन सी लाइब्रेरी है हमारे प्रोजेक्ट में। तो अभी ये फिर से ग्लोबल से उठा लाएगा सारी फाइलें, फिर से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट किससे कनेक्ट हो गया, ग्लोबली कनेक्ट हो गया। फिर से लोकली करना है तो एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो फिर से वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करो। कैसे करोगे, VENV फॉरवर्ड स्लैश, लिखो VENV फॉरवर्ड स्लैश, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आएगा, स्क्रिप्ट फॉरवर्ड स्लैश एक्टिवेट। और जितना सोचोगे कि एक बार हो गया बस खत्म, तो समझ लो फिर अगली बार कोई कोई पूछेगा तो बता नहीं पाओगे। हो गया एक्टिवेट, फिर लिखो पिप फ्रीज, तो आप देखोगे इसके अंदर सिर्फ जेंगो से रिलेटेड फाइलें होंगी। ओके सर। हाँ, और ओके, थैंक यू। और किसी का कोई एरर, अक्षित, अवधेश, दीपांशु, कुलदीप, प्रतीक, राहुल, सर ठीक। श्वेता, सुहानी, तरुण और विभोर कुमार पाल, किसी का कोई डाउट हो तो स्क्रीन से करवा सकता है। नो सर, नो सर, नो डाउट। हो गया सबका, थैंक यू सर। हो गया सबका, ओके यस सर, हो गया। Yes, sir. ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम सोच रहे हैं, पहले आप इतना प्रैक्टिस करिए, है ना, क्योंकि अभी आगे अगर पढ़ा दूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? नहीं नहीं सर, इतना इतना बहुत है सर, सफिशिएंट है। यस सर, आज तो मजा आ गया। इतना बहुत है ना, तो इतना आप लोग पहले प्रैक्टिस करिएगा, इतना अच्छे से बहुत इसको है सर। प्रैक्टिस हाँ, कर लिए 2 बार 4 बार, है ना। और फिर मैं आपको कल आगे पढ़ाऊंगा कि अब हम लोग कल सीखेंगे कि हम प्रोजेक्ट जेंगो में बनाते कैसे हैं। जेंगो का जब ओके सर। प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें कौन कौन सी फाइलें बनती हैं, कैसे जेंगो बनाएंगे, कैसे जेंगो की फाइलें सेटअप करेंगे, व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ जेंगो, जेंगो का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, और व्यू कैसे बनाए जाते हैं, और व्यू को रेंडर कैसे किया जाता है। कल का ये टास्क रहेगा, ओके सर। सीखेंगे। तो इतना लेकिन वही कर पाएंगे जिनका इतना काम हो चुका होगा, पिप इंस्टॉल हो गया होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप हो गया होगा, पाइथन के वर्जन देख पा रहे हो, क्योंकि पिप का वर्जन नहीं देख पाओगे तो पिप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, और जेंगो इंस्टॉल नहीं होगा तो जेंगो का प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। तो ये इतना तो होना चाहिए सबका, नहीं तो आगे फिर कोई भी काम नहीं। तभी मैंने कहा था कि इतना सबका साथ में करवाना जरूरी है, इसके बाद तो फिर जो मैं बताऊंगा वो सब कर ही लोगे। यहाँ तक का सेटअप सबका होना चाहिए, मैंडेटरी एकदम। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय ओके बाय। ओके, थैंक यू सर, बाय।